Hello everyone, one and all present here. I am Vinay Kumar, one of the members of our ATL team, Atal Tinkering team of Kendriya Vidyalaya Janakpuri, New Delhi. And I, on behalf of my team and Vidyalaya, welcome you all in today's Community Outreach Program Training 2020 in collaboration with our training partners Learning Links Foundation. हम आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं हमारे साथ रजिस्टर करने के लिए और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में आने के लिए। हमारे साथ इस समय हमारे विद्यालय के प्राचार्य, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की दोनों उप प्राचार्य मैम स्वीटी एंड मैम मोनिका बत्रा जी, साथ ही हमारे विशेष अतिथि डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ असम मिस्टर राजीव कुमार झा भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अधिक समय ना लेते हुए आप सभी का हृदय से धन्यवाद दूंगा और कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। हमारा यह प्रोग्राम कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम बेसिकली एक विजन है जहां पे वी ऑल हैव ट्राइड कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जो भी हमारे पास बेस्ट नॉलेज हमने पिछले कुछ साल में, पिछले कुछ महीनों में ऑब्टेन की है इन द फील्ड ऑफ गेम डेवलपमेंट, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल्स by our expert and facilitators, we can share it with all the schools who are ATL schools or non-ATL schools, irrespective of that. We have tried to assist the creativity beyond borders, and our program is basically about giving, contributing, and helping the schools who believe in community building for a better future with equal opportunities for all. This allows us to influence younger generations to give back the community, and it also helps the community to grow in a substantial way. मैं यहाँ पर आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगा हमारे आज के मुख्य अतिथि मिस्टर राजीव कुमार झा जी का, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं आम से। ये हमारे डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है और 15 वर्षों से भी अधिक एजुकेशन में इनका अनुभव है। एजुकेशन की बारीकियों को ये बहुत करीब से जानते हैं एंड बीइंग अ डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सर ना सिर्फ असम में एजुकेशन को देख रहे हैं, पर्यवेक्षण कर रहे हैं, साथ ही अटल टिंकरिंग को वहां पर स्थापित करवाने में भी सर का काफी बड़ा योगदान है। मैं चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम की शुरुआत में सर हम सभी को अपनी ब्लेसिंग्स दें, अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। राजीव सर। Thank you, Mr. Vinay. It's a great pleasure for me to coming back again on the KB platform. Being the ex-KB teacher, it gives me immense pleasure to have with us the principal of KB Janakpuri, the vice principals, so many faculty of the KB will be there. All the students who have joined this community outreach program, and above all the Microsoft team who have taken time out to help the students in tinkering activities. Of course, this is a very prestigious and praiseworthy initiative of our Honorable Prime Minister to start with the Niti Aayog in our country. And this is the vision and vision of Niti Aayog, who thought of the Atal Innovation Mission. And through Atal Innovation Mission, Niti Aayog thought of bringing the students of all the walks of life, students of different areas of the country together and take them in the spirit of tinkering. As the name suggests, tinkering means engaging with the small activities towards mending the things.
when I was interviewed by the Ayog while establishing and competing for Atal Tinkering Lab in Kendriya Vidyalaya CRPF Guwahati, I remember one question was asked to me by the interviewing team that please tell me what tinkering activities you have done very recently. And I would like to share on this platform the answer, and that very much tells what the tinkering means. I said, sir, in last 2 to 3 months, I have learned how to mend the puncture of the tube of the bicycle. This was just a coincidence that my sons who were learning how to bicycle, they used to, when the bicycle used to get punctured, there was no any repairing shop nearby, and therefore I was forced to learn how to mend the puncture of the bicycle. And this clicked to my mind, and when I gave this reply, the interview team was very happy, and they said, yes, Mr. Jha, this is actually what the tinkering means. So with this Atal Tinkering Lab, now the government plans to engage all our children in their extra time activities to use their time positively, to mend their different objects, maybe at their home. So what happens, we see nowadays that degrees we are having, but when it comes to life skills, we fail short of, and we mostly depend on others. For example, if one electric switch of the house gets array, we start calling the electrician, and sometimes if our fuse of simple fuse of the television is blown off, if the fuse of the gets blown off, we think that the machine has gone totally out of order, and we send it to the experts or to the shops. If we know tinkering the objects, so many things in our house we can repair ourselves. However, here I don't want to give the message that tinkering simply means repairing. When we see the syllabus of Atal Tinkering Lab, when we see the different gadgets and materials which makes the part of the Atal Tinkering Lab, we find that starting from electrical gadgets to robotics to STEM and to the breadboards, and so many different instruments are there which are there included in the Atal Tinkering Lab. And now when the new education National Education 20 has already deep thinking in the country with the saying that we are going to Goft school students the coding and the programming, the game coding, the programming, the artificial intelligence, the intelligence of high order. All these things, if are included in schools, maybe through Atal Tinkering Lab, or in schools where ATA lab is set up, then through devoted or dedicated teacher like Mr. Vinayji, who is ready to get engaged through community outreach program, I am very much sure the students of different schools, be it of KB, be it of the remote schools of North India, or be the state government schools, they all can be joined and they all can be mentored, they all can be engaged positively so that they utilize their extra time in this manner, and at the same time they can acquire the life skills of this 21st century. Therefore, with this community outreach program, in which Mr. Vinay invited me, I feel
extremely elated. I have said to my sons also to join the program, and I believe this community outreach program is going to attract the attention of so many students, and this brainchild of Mr. Vinay Tiotia to reach to the students through this community outreach program gets a big success. So I wish you all the very best. I wish Microsoft team, I wish the KB faculty members, administrative officers, and all the students all the very best. Please enjoy this community outreach online program. Yes, it is said that every bad thing has some silver lining, and I can see this COVID-19 situation, which has forced us to remain indoor, but this COVID-19 lockdowns and forcing to remain indoor has brought this webinar as a regular practice to meet with the people, to get outreached. So be a virus or be whatever, I think the virus inside must will feel that they are still just a connecting link between living and non-living, and they cannot overpower human. And with all safety measures, we will learn how to overpower the COVID, and let not this crippling situation kill us, and definitely we'll move ahead. However, I will request everybody, whenever you get out of the house, do take sufficient care and keep moving ahead. No any force can buckle us down. So wish you all once again the very best. All the very best, Mr. Vinay and your team. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for your kind words. We are really happy and pleasure is all ours. आप यहाँ पर हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत प्रसन्नता का विषय है, and we are really more than happy to be with you, sir. And thank you for your encouraging and blessings, encouraging words and your blessings. Thank you, sir. हमारे साथ हमारी प्रिंसिपल मैम अभी ज्वाइन की थी, अभी थोड़ी देर में दोबारा भी ज्वाइन करने वाली हैं. हमारे साथ फर्स्ट शिफ्ट से हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम स्वीटी जैन मौजूद हैं, और सेकंड शिफ्ट से हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम मिस मोनिका बत्रा जी मौजूद हैं. मैं चाहूंगा कि मैम स्वीटी हम सभी को ब्लेस करने के लिए कुछ शब्द एनकरेजमेंट्स के जरूर कहें, जिससे हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें. Okay. And first of all, on behalf of entire team, I would like to welcome Mr. Rajiv Kumar Jha, Deputy Director, Elementary Education, Assam, in this program. And thanks to sir and other teachers who are going to organize this program, for taking this initiative. And let me brief you, as Sir Rajiv sir has already briefed you about Atal Lab. I must tell you that this lab, Atal Lab, is providing the opportunities to not only to KB students but also to nearby schools and community children through this program, and to learn and experience innovation. So this is also contributing towards Atmanirbhar Bharat, which is actually the need of the hour, which will help the students, to groom out to become self-dependent citizen after acquiring different skills as per their areas of interest through experiential learning in Atal Labs. So it definitely empower young minds to identify their true talent and their potential. So all the best to the entire team of Atal Lab, and thanks for making us the part of this program. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for your kind and encouraging words. अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम सेकंड शिफ्ट मिस मोनिका बत्रा मैम को कि वो कुछ शब्द हमसे कहें फॉर ब्लेसिंग्स एंड योर एनकरेजमेंट मैम. Good evening, everyone. Good evening,
Sweetie ma'am, principal understand? Okay. Good evening, everyone, and welcome Deepak sir and team of Atal. And we are really grateful and we are really obliged to have you here. We are actually also grateful that you are helping us conducting this COP program, which I guess is one of its kind, and we haven't been done before by any school. So I really appreciate your help and your uh, guidance to Vinay and Shivam sir. And I guess it is a like I have seen the difference in the students. Like they were like because बच्चों का mind आजकल it's little idle. So you are giving them a direction to actually focus their energy somewhere which is in a constructive way and which will actually give them uh, develop their logical IQs and logical thinking and obviously giving them a skill for the future world. So I really am grateful to everyone here, especially Vinay and Shivam sir and the mentors who are helping them. So I welcome everyone here and thank you everyone for the support. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ हमारी प्राचार्य मैम जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर पुष्पा रानी यादव जी। मैम आप हैं यहाँ पर? प्रिंसिपल मैम आप हैं यहाँ पर? मैम थैंक यू मैम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैम हमारे आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने के लिए आप अपनी ब्लेसिंग्स दें मैम। Good morning, good afternoon, everyone. I wish my best of luck to all of you for this wonderful program that Vinay Tewatia has organized. And I welcome Mr. Rajiv Kumar Jha also, Deputy Director of Elementary Education, Assam, that he spared his valuable time to motivate our students to encourage our initiative in this direction. I welcome him and I thank him for sparing his valuable time for us. I hope his presence in the meeting will encourage our students to the maximum, and I wish my best of luck to all of you. And I really appreciate the efforts of Vinay Tewatia and Mr. Shivam that they initiate this type of program time to time in the welfare of the students and brings laurels to our Kendriya Vidyalaya Janakpuri. I wish them best of luck. Thank you everyone and I welcome you all. Special welcome to Mr. Rajiv Kumar Jha. Welcome, sir. Thank you, madam. Thank you very much. It's always a pleasure to be with KVNs. Really, sir, really. You are a source of motivation for us. Thank you. Take care. Okay, sir. Okay. Vinay, Mr. Thank Vinay, you, ma'am. Continue with your program now. जी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड एनकरेजमेंट। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे साथ मौजूद हमारे ही एक स्टूडेंट क्लास 9 से सुधांशु कुमार, उनको रिक्वेस्ट किया कि वो अपने एक्सपीरियंस को आपसे साथ शेयर करें और बताए कि किस तरह से उन्होंने विद्यालय की इस अटल टिंकरिंग जर्नी को किया है और क्या-क्या थोड़ा बहुत सीखा है। ये प्रेजेंटेशन हमारे स्टूडेंट सुधांशु कुमार ने खुद ही बनाई है और अपने खुद भी यहाँ पर कोशिश की है। होप यू विल ऑल लाइक इट। सो हियर ओवर टू यू सुधांशु। थैंक यू सर। Is this screen visible, sir? Yes, Sudhanshu, it's visible. You can start. The innovative journey of Atal Tinkering Lab of Kendriya Vidyalaya, Janakpur. Ideas can help you inspire, innovate, and create. Ideas are the start of something new and big. The Atal Tinkering Lab is one of the best opportunity for us tinkerers to tinker very efficiently. The way our mentors taught us the basics and fundamentals was incredible. And as we all know, discussions always helps us to improve. Also discussed and have improved us a lot. But hey, the lockdown has started, right? But no, there's nothing to be worried about
because our learning goes digital. By creating an environment which occupies the knowledge as well as fun is something very fascinating. We tinkerers, we, we tinkerers created games, animations, 3D models, and many more through Planet Code and Scratch. Games like quizzes, animational games, platformers, 2D games, etc. were produced by all of us. Apps like painting apps, translating apps, list making apps, information giving apps, and also brain booster apps created by all of us. 3D models for different occasions, like one for one Mahotsav model, for swimming pool model, and other 3D car racing game, etc. They all they all outcome as a very efficient way to produce the best of us to increase our creativity and tinkerness. The acknowledging moments. Our projects were also applauded by AIM directors is the video of Sudhanshu Kumar Jha, whose video was uploaded and was showcased on the occasion of advanced model launch. And they were also tweeted by AIM's official Twitter handle. Tinkerfest 2020. We participated in the different collaborations. One of them was the Tinkerfest 2020, organized by one of the biggest schools of Noida. We also got to learn many more things, many more new things in Tinkercad, Scratch, and as well as Construct 2. Summer Camp 2020. We also participated in the summer camp organized in June 2020. Mentors were greatly interacting with us and giving a whole pack of knowledge to us and sharing their experiences and having the exchanging of cultures with each other. Dell Volunteering Sessions 2020. We also took part in the volunteering sessions organized by Dell Technologies. It was a very great opportunity for me and my team to be there and to share our culture and our traditions with different students of different corners of our country. Community Outreach Program 2020. Hosted by Atal Tinkering Lab of Kendra Vidyalaya Janakpuri. It is aimed to highlight the quote that the great knowledgeable people. There we will there there we will be taught the very interesting and enthusiastic topics like machine learning, artificial intelligence, game development, and 3D print and 3D model creation. So, uh, let us create a creative community for collaboration and learning.
Thank you, innovators. Dhanyavad. Thank you, Sudhanshu. Thank you so much. It was really wonderful. And we hope that all the students who are watching this must be really happy as well as excited and motivated enough to see how much a student can really learn in a few months if that student has the zeal, enthusiasm, and curiosity to tinker and to learn. Now, अब मैं सीधा हमारी एक्सपर्ट एंड मेंटर टीम की ओर जाना चाहूंगा विदाउट मच अडू, बट जाने से पहले मैं यह बताना जरूर चाहूंगा कि यह सब हमारी टीम के बगैर पॉसिबल नहीं हो पाता। हमारी पूरी स्टूडेंट टीम, मैं और हमारे साथ मिस्टर शिवम रघुवंशी जी, जिनके कारण यह सब हो पाया है। सो अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब मैं सीधा हैंड ओवर करना चाहूंगा मैम प्रतिभा को, जो लीड कंसल्टेंट हैं टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में इन लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन। मैम प्रतिभा, are you there? Yes, sir. Thank you. Thank you for such a warm welcome. And I would like to congratulate all the students who have already participated, who have achieved a great deal in all these platforms, and also thank the schools for giving such and bringing out such a beautiful opportunity among the students, and extending these opportunities to the community is a very big step that the school has taken, and we heartily thank the school for all the efforts that has been taken. मैम अब कोई नहीं है मैम, अब आप बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पर चल रहा है प्रोग्राम। दीपक सर, सुप्रिया मैम, यस विनय सर। मैम अब यहाँ से हम गूगल मीट से लीव कर सकते हैं? यस सर, यस सर। थैंक यू मैम। सो आई कैन, ओके, थैंक यू मैम। प्रिंसिपल मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम एंड राजीव सर, थैंक यू सो मच। आपने आज अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें इतना वक्त दिया है। अब माइक्रोसॉफ्ट पर हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। सो Yes, Pratibha ji, now it's hand over to you. Now you can take it over. Thank you. Thank you. I hope this is fine. Can I start now? Yes, yes, absolutely. Thank you. So a very warm welcome to all the students who are there today. And before going any further, I would like to, talk to you about this important program that we are here. That is a community outreach program. So before going to community outreach program, let's try and understand what is that we have here today and how important is this. So this community outreach program is bringing out to you one step closer to the technology, which is currently, making too much of, which is gaining too much of importance in current platforms. So one such platform is the vastly or a widely talked about platform is gaming, and the other one is artificial intelligence. So we, being from Learning Links Foundation and Janakpuri School, have come together to bring this program to every single student who are available, who is not even part of the schools, who is available in the city. So having said this, let's talk about the program in detail. So this program will teach you about the current technologies and how to develop games and how to, code, and also the artificial intelligence. Okay, and the session will be conducted in 3 stages or in 3 days, starting from today. Every day your session will be scheduled from 4 p.m. to 5:30 p.m. So it will be a 1.5 session. So make sure you attend, you have your full attendance when you're attending this session. And all these 3 days of session will be put on Microsoft Teams, which means the link will be shared to you over the mail. So you don't have to worry about, where to join or how to join. The link will be shared to you over the mail and you can join us.
And the next best thing is you can learn anything that you are wishing to learn about these 3 topics on your own, and we'll be there to support you throughout. So if you have any questions or queries regarding these topics, or if you have any doubts, if you're already well versed in all these topics, if you want to learn more about this, we would be more than happy to help you out. So what are the topics that we are talking about? We are talking about the 3 different topics. The first one would be the Scratch platform to understand the basics of coding and the basics of gaming sessions. So you'll have to start from the Scratch. So today we will be learning in brief about Scratch and how to be and masters how to be an excel in these platform. And following this topic, tomorrow you'll be learning about a construct and other important platform to polish your skills even further in a gaming or even further in a coding. So tomorrow you'll be learning about a topic called construct. This is another platform which is available to the students to program, to game, to code, to animate, to do much more wonderful things with it. And the last and the final day, we will be teaching you or taking you through the notions of AI, that is artificial intelligence. Now, having said these 3 topics are very important, and it is very huge, or the very vast topics that which we have now. So what we will do is we will just take you through the orientation of all these 3 topics, and furthermore we will have in brief sessions about these topics individually. But these 3 days, I want you to have a better focus on these 3 sessions, because this is where you will have an understanding on what these platforms are, how better can I put a use to it, and have a basic introductory of these sessions. So these 3 important sessions are really necessary if you are interested in gaming or coding, or you want to learn any new technologies. So having said this, we also have an interesting fact to it. We are organizing a Tinkerfest 2020. The details of the Tinkerfest will be informed to you later. But for now, please be aware, whenever you're learning, learn to the best of you, because your best of you can present it somewhere. You can compete with the other team members or the other schools which are participating. So we are going to bring this opportunity to compete, to present your projects in Tinkerfest. And the details about it, like I said before, we will be informing it to you, or will be bringing out to you in a later stages. And if some people are worried about the information or the sessions, please don't be, because we will be sharing these informations or the slides or any information pertaining to the session will be shared to you over the mail, or we'll make sure that reaches out to you in the right amount. So having said this, we have almost covered too many of the topics. So without wasting any time, let's get into the topic and understand. So today we are going to learn about Scratch and how to develop games. So I will let Mr. Deepak to introduce to you to the platform and learn more about it today. Thank you all. Have a good learning. Have a good day. Deepak, over to you. Thanks, ma'am. Good evening, all of you, and thanks, ma'am, for sharing us such a kind information. So, students, now I am going to share some screen to you. So, just tell me. Okay. So, first of all, my questions come to mind that. Okay, it's just. Okay. So, students, some first questions come to mind when that. How do you love gaming? Means in your thinking, what is gaming? That what type of games you love so much? आपको मीन्स सबसे ज्यादा पसंद कौन से गेम्स हैं? You can write in the chat box and we will see that what type of games you will love to play. Okay, so first question comes in mind that today we are living in 21st century. Okay, सो अभी तक हम जब भी मतलब गेम खेलते थे तो एक खुद के एंजॉय के लिए खेलते थे, हमारे पास कुछ टीम्स होती थी और उसमें हम गेम प्ले करते थे और हम उसमें विन होते थे तो हमें कुछ स्कोर मेरी बढ़ती थी या रैंक बढ़ती थी। बट कभी हमने गेम क्रिएशन के बारे में इतना नहीं सोचा कि हम हमेशा किसमें टेक्नोलॉजी में, तो गेम प्लेइंग में। बट टुडे आई विल टेल यू दैट हाउ कैन यू मेक योर ओन गेम by learning from all these modules like ma'am told that Scratch, Construct or Unity. Okay. So, come question, why is this important? Okay,
So very important question that sir, why gaming is important, that you are saying that gaming is important because you know that 40% of the exciting jobs will be outdated by 2030. मीन्स कि जो करंट सिनेरियो है आप देख सकते हैं कोविड-19 सिचुएशंस में कितनी मतलब हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है, बट अगर हमने टेक्नोलॉजीज के साथ अगर हम बिल्कुल अप टू डेट नहीं रहते तो शायद हम और भी ज्यादा इस जो हमारा कोविड-19 सिचुएशन है उससे और ज्यादा इफेक्ट होते हैं। बट आज हमारे पास इतनी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटर, 3D डिजाइंस, गेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्या है आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स पे डिपेंड है। मीन्स कि अब देखो अब आप क्या है कि अब आप प्रोग्रामिंग सीखिए कि प्रोग्रामिंग के साथ आपको एक साथ क्या चलना पड़ेगा। मीन्स अगर आपने ये सोचा कि नहीं प्रोग्रामिंग मैं बाद में सीख लूंगा तो टाइम जो है वो काफी तेज निकल रहा है और आप उस मतलब जो पाथ में है जिसमें बहुत सारे लोग चल रहे हैं उसमें पीछे हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपके माइंड में आज से क्वेश्चन आना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें कंज्यूमर्स ऑफ टेक्नोलॉजी से क्या बनना है, क्रिएटर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा कि कितनी ड्राइवरलेस कार गूगल बना रहे हैं, टेस्ला की कितनी एडवांस कार आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो काफी सारी टेक्नोलॉजीज क्या है अब हर दिन हमारी लाइफ में आ रही है। पहले हमारे पास एक सिंपल फोन होता था, हम जाते थे पोस्ट ऑफिस में और वहां पे हम कॉइन्स डालते थे और बात करते थे। आज अब देखो आपके पास इवन कितना छोटे से स्मार्टफोन आ गए हैं और आप उस स्मार्टफोन से दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हो, किसी भी काम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो बाय द स्मार्टफोन। तो वो क्या हुआ, एक टेक्नोलॉजी आई। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें गेमिंग का भी बहुत बड़ा रोल है। यानी कि जो गेम क्रिएशन की जो हमारी मार्केट है अराउंड 500 बिलियंस का उसमें इंक्रीज होने वाला है बाय द 2030। ओके, सो अब क्वेश्चंस कम इन माइंड कि सर गेमिंग और ये सब चीजें कैसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे बताया कि जब आप कोई चीज टेक्नोलॉजीज की बनाओगे तो सबसे पहले आपकी कुछ चीजें सबसे पहले क्या हो जाएंगी, प्रोग्रामिंग स्किल्स स्ट्रक्चर इंप्रूव होगी जो कि आज की नेसेसरी हो गई है आपकी ग्रोथ के लिए। आप अगर कभी भी जाओगे, अगर आप ये सोचो कि आप स्मार्ट बन जाओ केवल एक नॉर्मल स्टडीज से, तो आप स्मार्ट नहीं बन सकते हो। आपको अपने आप को स्मार्ट कैसे बनाना है, जैसे गवर्नमेंट का भी एक मोटो आया था स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी कैसे बन सकते हैं जब तक कि उसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व नहीं होगी, और स्मार्ट टेक्नोलॉजीज कैसे होंगी जब तक हमारे स्मार्ट पीपल नहीं बनेंगे। और स्मार्ट पीपल कैसे बनेंगे, बाय लर्निंग फ्रॉम द टेक्नोलॉजी स्किल्स। मींस नई नई टेक्नोलॉजीज वो सीखे और उसके साथ कुछ डिजाइन करके दे जो कि हमारे सोशल जो प्रॉब्लम्स है, काफी ड्रेनेज सिस्टम, पॉल्यूशन, वाटर, जो कि उनको दूर हो जाए। ओके, सो हम आपको कौन कौन से कोर्सेज इन 3 डेज में पढ़ाएंगे। तो मैं आज आपको पूरा स्क्रैच का बेसिक से एडवांस पूरा बता दूंगा कि स्क्रैच में होता कैसे है, आप खुद के गेम कैसे बनाते हो। आज के जो हमारा कोर्स का मॉड्यूल रहेगा स्क्रैच पे रहेगा, कल हम इंटरमीडिएट मॉड्यूल पे पढ़ाएंगे और उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चले जाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट स्क्रैच से कि व्हाट इज स्क्रैच। ओके, so let's go to the scratch. So you have to learn and write this website on your copy and notebook. आपको क्या करना है, scratch.mit.edu इस वेबसाइट को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इट्स अ स्क्रैच विंडो, और स्क्रैच हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, साथ में ऑफलाइन भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मैंने लिखा गूगल क्रोम में scratch.mit.edu, then go to the join option. After joining, just go to the create. Okay, so this is the option for online, like you are using Google Chrome or you are using smartphone. So I would like to say that you directly go to Google Chrome. For the smartphone, just go to the 3 dots and enable the desktop side. So this window will appear on your screen. Okay, so for the offline, you just simply go to the scratch, type scratch download on the Google Chrome and click on the first link. Just simply write on the Google Chrome scratch download and just click on the first link. Okay, as soon as you click on the first link, the download site will open. Okay, so जैसे ही आपने स्क्रैच को ओपन करा ऑन द ऑनलाइन, तो ये विंडो आपको अपीयर होके आएगी। ओके, आई थिंक सभी को क्लियर है ये विंडो अपीयर होके आएगी। तो मैं आपको इसमें कैसे क्या स्प्राइट सेलेक्ट करते हैं, कैसे बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं और कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। साथ में मैं एक छोटा सा एक एनिमेशन मैजिक का भी बना के आपको दिखाऊंगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, you can download a scratch from this site. Okay,
scratch.mit.edu/download. We will share all the links with you. Don't worry about the link. You just see what you have to do. Like if you are having Windows 10 plus version और Apple Mac ऑपरेटिंग सिस्टम, क्रोम जैसे मैंने बताया तो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम में डायरेक्ट चल सकता है, या एंड्रॉयड हमारे पास 6 के एडवांस वर्जन हो गए, उसमें हमारा स्क्रैच क्या है कंपेटिबल है, आप उसमें क्या है डायरेक्ट क्या है डाउनलोड कर सकते हो. ओके, फॉर द विंडोज जस्ट क्लिक ऑन द डायरेक्ट डाउनलोड लिंक and you will get download like this. This is the offline version of Scratch. Okay, so I will share all the link with you. Don't worry about the link, just clear on the concept. Okay, okay, so just let's start. Okay, so first of question I will say to you that how can you design your own game, यानी कि आप अपना गेम कैसे डिजाइन करोगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, scratch.mit.edu, ये एक ऑनलाइन आपको टाइप करना है अपने गूगल क्रोम में. देन गो टू द ज्वाइन ऑप्शन. आफ्टर ज्वाइनिंग जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट ऑप्शन. ओके, सो आई थिंक एवरीवन हैव गॉट इट. सेकंड, जस्ट हाउ कैन यू डिजाइन योर ओन गेम. सो दिस सॉफ्टवेयर इज अ 2D, यानी 2 डायमेंशनल गेम्स बनते हैं और इट्स अ एजुकेशनल वेबसाइट. दैट्स व्हाई वी विल मेक हियर सम एजुकेशनल गेम्स. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर गेम नाउ. ओके, हाउ कैन यू मेड योर ओन गेम. सो जब भी आप गेम खेलते हो तो सबसे जो चीजें इंपॉर्टेंट गेम में कौन सी रहती हैं. फर्स्ट थिंग इज बैकड्रॉप, मीन्स की जो बैकग्राउंड आपको सिलेक्ट करना है, और दूसरी चीज क्या है स्प्राइट कैरेक्टर, और तीसरी क्या है कोडिंग या प्रोग्रामिंग. आप गेम में कैसे कोडिंग या प्रोग्रामिंग को उसमें अपने गेम्स को कितना ज्यादा उसको जो इफेक्टिव बनाने कंडीशंस उसमें इन्वॉल्व करके आप गेम को कितना उसको अच्छा बनाते हो. तो आई विल गो वन बाय वन. ओके, सो जस्ट यू कैन सी दैट चूज द बैकड्रॉप. बैकड्रॉप मीन्स क्या होता है, बैकग्राउंड मीन्स आपको कैसे बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है. जो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द चूज द बैकड्रॉप. तो इसमें स्क्रैच में आपके पास कुछ इनबिल्ट बैकड्रॉप है, तो आप इसमें से कुछ भी जो भी आपका जो आपको अच्छा लगे आप उसमें से कुछ भी अपने गेम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो. लाइक आई हैव टू सिलेक्ट दिस. सो विच हाउस, आई जस्ट क्लिक ऑन दिस विच हाउस and it's directly appear here. Okay, you can maximize the window and you can see that the our backdrop is selected. ठीक है, अगर आपको बैकड्रॉप नहीं अच्छा लग रहा आप फिर से जाओ वापस उसी में क्लिक करो और आप कोई भी दूसरा ऑप्शन को जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसमें चूज कर सकते हो. ठीक है, तो आपने सीखा कैसे बैकड्रॉप चूज करते हैं जो कि इनबिल्ट है. अगर हमें कभी पेंट के थ्रू बनाना, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द पेंट. ओके, आपको पेंट ऑप्शन में क्लिक करना है और इट विल ओपन द पेंट विंडो. ओके, अगर आपको अपलोड करना है तो ये क्या है पेंट की विंडो ओपन हो गई है. तो आपको कैसे पेंट को सिलेक्ट करना है आई विल टेल यू. जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द कन्वर्ट टू बिटमैप. ओके, आफ्टर बिटमैप just select color. Like I have to made a night theme, so I will choose the color black. Okay, just simply click on it, and after that I have to insert one moon in it, so I will change the color from black to white. Okay, so color is selected white. Okay, you can make a moon. Okay, and after that you can see or stars in it. Okay, I think all of you have clear that how can you design through the paint. Okay, and the last most important question comes in mind कि सर हम Google Chrome से कैसे अपलोड करेंगे. तो Google Chrome से हमें जब भी अपलोड करना है तो जस्ट हमको PNG इमेज ही अपलोड करनी है या वेक्टर JPG इमेज होती है वो भी हम डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, जस्ट सी आई हैव गॉन डाउन, आई हैव व्हाट written forest PNG images. I have just typed it क्या forest PNG images. Okay, so there are various images of the forest. आप देख सकते हो काफी सारी forest की images है. तो आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा आपको PNG images ही करनी है या वेक्टर JPG. वेक्टर JPG इमेज की जो आपको फॉर्मेट क्या है आप देख सकते हो. वेक्टर JPG में आपको डॉट डॉट ऐसे दिखाई देंगे, ये हमारे स्क्रैच में सपोर्टेबल है. ठीक है, एंड दिस वन आप देख सकते हो इट्स अ PNG इमेज, आपको दिख रहा होगा. अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, दिस वन लाइक दिस सेव इमेज एज. ओके, सो इट विल सेव ऑन योर फोल्डर, जहां पे आपने फोल्डर अपना बनाया हुआ है वहां पे जाके ये आपकी जो इमेज है वो सेव हो जाएगी. ओके, इट्स टेकिंग टाइम. ओके, लाइक आई विल सेव ऑन द 1st July. Okay,
सो मैंने क्या करा है, मैंने 1 जुलाई फोल्डर में सेव करा हुआ है. ओके, सो अगेन आई हैव टू सेव इट. स्टूडेंट जस्ट सी इट दैट हाउ कैन यू सेव इन एनी फोल्डर. आप किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हो. देन जस्ट गो एंड अपलोड दैट इमेज. ओके, सो इट्स अ वेरी सिंपल कि आपको क्या करना है, हमेशा या तो वेक्टर जेपीजी इमेज या आपको अपने जो भी आपने सिलेक्ट करी है उसको पीएनजी इमेज में कन्वर्ट कर लो, तो दैट इज सपोर्टेबल फॉर आवर स्क्रैच. ओके, सो यू कैन सी इट कि ये मैंने गूगल क्रोम से आपके सामने मैंने क्या करा है, अपलोड करी हुई है और ये मैंने यहाँ पे इसको अपलोड कर दिया. अब देखो जैसे ही आप अपलोड करोगे तो आपको क्या आएगा, कन्वर्ट टू वेक्टर. आपको इसमें करना है क्योंकि ये अभी आपकी पूरी स्टेज में पूरी एज पर द साइज नहीं है. तो आपको करना है कन्वर्ट टू वेक्टर में जाके सिलेक्ट ऑप्शन में करना है, उसके बाद इसमें करना है और उसके बाद आपको इसको सिलेक्ट कर देना है एज पर योर विंडो साइज. ओके, सो आई थिंक कि आपको सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. ठीक है, देन आई विल मूव टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट टास्क दैट हाउ कैन यू चूज अ स्प्राइट. मीन्स आप स्प्राइट को कैसे चूज करोगे. जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द दैट सर्च बटन and you can choose a various sprite on this. Okay, like this you can choose a butterfly and you can choose a second butterfly and you can choose a various characters in this like dinosaur or dinosaur this one. So you can choose a various character as per your game requirement. So I think your concept is clear till now. Okay, let's move on the concept of the paint. Same concept is applied to the paint, that you have to just click on the paint and then just go to the convert to bitmap. Okay, then just made any design what you make. Okay, last most important that कि आपको जो स्प्राइट अपलोड करनी है, मीन्स कैरेक्टर जो अपलोड करने हैं, उनका बैकग्राउंड हमेशा क्या है, क्लियर होना चाहिए. मीन्स आप देख सकते हो जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो पीएनजी होने चाहिए, प्लस उनका क्या है, कैरेक्टर्स उनका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो भी क्या है, क्लियर होना चाहिए. यू कैन सी दैट ऑल ऑफ द इमेजेस हैव द ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड. सो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको अपने जो भी कैरेक्टर्स हैं इसमें जो भी सिलेक्ट करने हैं, उनका जो भी आपको लेना है गूगल क्रोम से, वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड. ओके, इफ यू डाउनलोडेड आर इमेजेस with the background like like I have uploaded one character battery png images. Okay, so I have just telling you that how can you remove the background, while there are various process. You can go to the Google Chrome and just find it that which software is better to you. Okay, so just मैंने क्या करा, एक बैटरी की png इमेज ली है, ठीक है, इसको मैंने सेव करा है. आप देखो मैंने कहाँ पे अपने कंप्यूटर में सेव कर रहा हूँ, और उसके बाद जब मैं अपने इसको स्क्रैच सॉफ्टवेयर में जब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो इसका बैकड्रॉप भी क्या आएगा, मेरे साथ आएगा. ओके, सो आई हैव जस्ट save it on my computer and then I will go to the upload sprite. Okay, so you can see that the sprite that I have downloaded from the Google Chrome, it's have its own background, but you can see that the characters that are available in the Scratch have transparent background. So there are various software available that if you have to go online, go to this software, and if you have any Adobe Photoshop or any software, so just simply apply to the transparent background and simply इसका बैकग्राउंड आपका रिमूव हो जाएगा. आई थिंक सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि कैसे बैकग्राउंड करता है. आपके पास वेरियस सॉफ्टवेयर है इसके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को करने के लिए, आप उसको अप्लाई कर सकते हो. ओके, अब मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ. जो हमारा जो थर्ड मेन टास्क है वो किसका है, प्रोग्रामिंग का. मीन्स कि हम कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे. प्रोग्रामिंग इज नेसेसरी, जैसा कि मैंने बताया, और जो हमारी प्रोग्रामिंग की स्किल्स है वो गेमिंग से बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएंगे. मीन्स गेमिंग एक तो इंटरेस्टिंग होता है, प्लस क्या है, काफी इजी होता है. ये जो स्क्रैच हमारा सॉफ्टवेयर है, ये क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप क्या है, प्रोग्रामिंग ब्लॉक. ये हमारे प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स हैं.
और इनको हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और उसके थ्रू हम अपना गेम बनाएंगे। ओके, सो मैं जल्दी से ये सारे ब्रीफ करता हूँ और उसके बाद मैं एक गेम बनाता हूँ। ठीक है, कि अब आपको दिख रहा है मोशंस। मोशंस मीन्स क्या होता है, मूवमेंट, यानी कि अगर आपको किसी को मूवमेंट कराना है, कभी मोशन कर देना हो, तो हम हमेशा क्या करेंगे, मोशन कमांड को यूज करेंगे। जैसा आप देख सकते हो मैंने डायनासोर में क्या लिया, मूव 10 स्टेप्स, और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ये अपने मोशन करने लगेगा। ओके, सेकंड थिंग इज कि अगर मुझे किसी को फ्लाई कराना है, कभी जैसे किसी बटरफ्लाई को या किसी भी कैरेक्टर को अगर वो फ्लाई करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, ग्लाइड। देखो ग्लाइड जैसे ही मैंने करा वैसे ही क्या हुआ, ये फ्लाइंग मोशन में आ गई। मीन्स कि हमने एक चीज जानी कि अगर हमें किसी को फ्लाई कराना है तो हम हमेशा क्या करेंगे, ग्लाइड लेंगे। नॉर्मल मूव स्टेप्स करने हैं तो हम हमेशा क्या करेंगे, मूव 10 स्टेप्स लेंगे। ओके, अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क आता है कि हमें जैसे जब भी हम गेम खेलते हैं और किसी भी करेक्टर को मूवमेंट कराना होता है, कैसा, अप डाउन राइट लेफ्ट, और ये हमारे पास एक 4 एक एरोस कीज भी रहती है हमारे, जब भी हम प्ले करते हैं कोई भी गेम, तो वो हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस उसके पहले आपको क्या करना है, उसके पहले आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, दिस वन। ठीक है, एक्स वाई ग्रिड, इसको आपको अपने माइंड में पूरा मतलब आपको बैठाना पड़ेगा, तब आप इसको क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो हमारा जो स्क्रैच है, ठीक है, हमारा जो स्क्रैच है वो क्या है कि एक 2 डायमेंशनल गेम्स है, तो इसके क्या है, 2 डायमेंशंस मींस एक्स और वाई। ठीक है, एक्स की जो रेंज है वो क्या है, 240 टू -240, और वाई की रेंज क्या है, +180 टू -180। वो क्या है, जो हमें स्टेज के अंदर जो हमें डायमेंशन चाहिए वो इसके हैं, आप इसके बाहर के भी ले सकते हो, बट वो क्या होगा, वो हमें चीज दिखेगी नहीं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको सभी को पहले क्या करना है, इन डायमेंशंस को अपने माइंड में रखनी है। एक्स की डायमेंशंस रेंज कहाँ है, x 240 टू -240, और y की रेंज क्या है, 180 टू -180। आई थिंक सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा इतना। ठीक है, अगर हमने किसी कैरेक्टर्स को, जैसे यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, और गो टू x 300 लिखा और y को हमने 200 लिखा, और जैसे ही हमने इसका करा तो ये क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा। मींस हाइड गेम में नहीं होगा, बट ये हमारी जो स्क्रीन है उससे हाइड हो जाएगा, मींस उससे हमारा कॉर्नर में चला जाएगा, क्योंकि ये रेंज क्या है, ये रेंज आउट ऑफ रेंज है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा इस रेंज को अपने माइंड में रखना है, कि जिससे कि हमारा कैरेक्टर्स क्या है, कि हमें विजिबल हो। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि किसी भी कैरेक्टर को हमें अगर अप डाउन राइट लेफ्ट करना है, तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान में रखना पड़ेगा, देखो जब आप इसको देख रहे हो, किसको, x 240 और x -240, मीन्स अगर मैं यहाँ पे सेंटर में खड़ा हूँ, मीन्स अगर मैं सेंटर पे हूँ और मुझे अपने कैरेक्टर्स को राइट में ले जाना है, मीन्स राइट करना है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, चेंज इन x को पॉजिटिव में ले जाएंगे। मीन्स अगर हमें किसी भी कैरेक्टर को राइट भेजना है तो हम हमेशा क्या करेंगे, कि हम उसको क्या करेंगे, x चेंज इन x पॉजिटिव करेंगे। अगर हमें किसी कैरेक्टर को लेफ्ट भेजना है तो हम क्या करेंगे, चेंज इन x को नेगेटिव लेंगे। अगर हम किसी कैरेक्टर को अप ले जाना, मीन्स अप करना है उसी कैरेक्टर को, तो हम चेंज इन y पॉजिटिव करेंगे। अगर हमें किसी कैरेक्टर को डाउन करना है तो हम चेंज इन y नेगेटिव करेंगे। ठीक है, अब जो मैंने बोला, मैं पूरा सब कुछ इस जो हमारे जो ये जो कैट है, इसको मैं सेंटर पे रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको पूरा अप डाउन राइट लेफ्ट इसका मैं क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आप ध्यान से देखिएगा, तो मैंने क्या बोला आपसे कि अगर मुझे किसी को राइट भेजना है तो मैं पहले क्या करूंगा, इवेंट से जाऊंगा, और मैंने क्या कर लिया, राइट बटन चूज कर ली, यानी राइट एरो चूज कर ली। तो राइट एरो मैंने बताया भी आपको कि अगर आपको कभी भी राइट में जाना है तो हम हमेशा चेंज इन एक्स क्या करेंगे, पॉजिटिव। ओके, तो चेंज इन एक्स क्या करा मैंने, पॉजिटिव। अब मैं जैसे ही राइट एरो करूंगा तो देखो क्या हो रहा है, ये क्या है, राइट में जा रहा है। ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अगर हमें किसी कैरेक्टर को ओके, अगर हमें किसी कैरेक्टर को क्या करना है, लेफ्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, आई थिंक कुछ बच्चों को काफी फास्ट मेरा लग रहा होगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से जाता हूँ, मैं फिर से एक बार क्लियर करता हूँ आपको बिल्कुल आराम से। ठीक है, अगर हमने सेंटर पे रखा किसी कैरेक्टर को, मैं एज अ सेंटर में इसको ले जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। ठीक है,
अगर मुझे किसी भी कैरेक्टर को क्या करना है, राइट भेजना है, मीन्स एक कैरेक्टर को हमें राइट मोशन करना है, तो हम हमेशा क्या करेंगे, चेंज इन एक्स क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। ठीक है। अगर हमें किसी कैरेक्टर को लेफ्ट भेजना है तो हम क्या करेंगे, चेंज इन एक्स को नेगेटिव करेंगे। अगर हमें किसी कैरेक्टर को क्या करना है, अप करना है, मीन्स ऊपर करना है, तो हम क्या करेंगे, चेंज इन वाई को पॉजिटिव करेंगे। अगर हमें किसी कैरेक्टर को डाउन करना है तो हम चेंज इन वाई को नेगेटिव करेंगे। ठीक है। तो मैंने इसके लिए क्या करा, इवेंट्स में गया। इवेंट्स वो कमांड होता है जहां से हम अपने गेम्स को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हम उसको कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, बटन से या फ्लैग के थ्रू या सस्पेंड के थ्रू, तो वो हमारी इवेंट्स बटन होती है। मीन्स इवेंट्स हमारा ब्लॉक है जहां से हम अपने गेम को कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं, ये ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे राइट एरो से इसको आगे भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, चेंज एक्स बाई 10। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, राइट एरो प्रेस करूंगा, तो ये क्या है, हमारा जो करेक्टर है ये राइट हो जाएगा। ठीक है। अगर मुझे इसी करेक्टर को लेफ्ट करना है तो मैं क्या करूँ, फिर से लेफ्ट ऑप्शन चूज कर लेता हूँ यहाँ से। ओके, जस्ट आई सिंपली चूज द लेफ्ट एरो एंड आई विल सिंपली चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है। तो हम मोशन में जाएंगे और चेंज इन एक्स क्या है हमारा, पॉजिटिव से अब क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि जो मेरा करेक्टर है, ठीक है, वो क्या है, लेफ्ट भी जा रहा है और साथ में राइट भी जा रहा है। यानी कि अगर हमें किसी करेक्टर को लेफ्ट करना है तो हम हमेशा क्या करेंगे, चेंज इन एक्स को नेगेटिव लेंगे, और हम किसी को राइट करना है तो चेंज इन एक्स पॉजिटिव करेंगे। आई थिंक आपको सभी को ये चीज बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। अब सेकंड मैंने आपको बताया कि अगर हमें इसी करेक्टर को अप करना है, डाउन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा चेंज इन वाई को अप के लिए पॉजिटिव और डाउन के लिए नेगेटिव। तो अगेन आई विल गो टू द इवेंट ऑप्शन एंड नाउ आई विल सिलेक्ट द अप। नाउ आई विल आल्सो डुप्लीकेट दिस, ओके, एंड गो टू द डाउन। ओके। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर हमें अप जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चेंज इन एक्स को मोशन में जाएंगे, अब चेंज इन वाई को मैं आपके लिए पॉजिटिव, एंड फॉर द डाउन चेंज इन वाई नेगेटिव। ठीक है, यू कैन सी इट। सो अब मेरा करेक्टर अप, डाउन, राइट, लेफ्ट। ठीक है। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम आ रही है कि जब मेरा करेक्टर क्या है, लेफ्ट जा रहा है, तो हमें क्या करना है कि हमें अगर जैसे इसकी पोजीशन को चेंज करना है, तो अगर हमें किसी भी करेक्टर की कभी भी कुछ भी उसके कॉस्ट्यूम में कुछ चेंज करना है या उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है, तो आई जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दैट करेक्टर एंड जस्ट सिंपली गो ऑन द कॉस्ट्यूम ऑप्शन। एंड आपको करेक्टर क्या है, अभी क्या है, राइट में है। अगर आपको इसको क्या करना है, लेफ्ट में करना है, तो आप क्या करो, just go to the flip option and click on the flip horizontal। तो इसका जो आपका जो फेस है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको किसी भी कैरेक्टर का कोई भी मोशन चेंज करना है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शन में उसको उस जैसा भी आपको अगर लग रहा है कि मेरा कैरेक्टर सही नहीं है तो हम उसको कॉस्ट्यूम में जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आप सभी को इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है। देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, लुक्स। लुक्स मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा इस कमांड से ही कि लुक्स मीन्स क्या होता है, कि मीन्स अगर हमें किसी को बैकड्रॉप चेंज करना है अपने गेम का, या हमें कॉस्ट्यूम चेंज करना है। अब मैं कॉस्ट्यूम को डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कॉस्ट्यूम को ही चेंज करना है। मीन्स कि अगर मेरे पास किसी भी कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम काफी सारे हैं तो हम उसको लुक्स ऑप्शन से चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो हमारी स्प्राइट वन है उसके पास 2 कॉस्ट्यूम है, बटरफ्लाई है उसके पास कितने कॉस्ट्यूम है, 3 कॉस्ट्यूम्स है। तो अलग अलग कैरेक्टर्स के आपके पास डिफरेंट कॉस्ट्यूम होते हैं। ठीक है। तो अगर मैंने बोला कि इस बटरफ्लाई को कि इसके कॉस्ट्यूम चेंज हो जाए, तो मैं सिंपली नेक्स्ट कॉस्ट्यूम कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं करूंगा इसमें इसके कॉस्ट्यूम क्या हो, अब चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो हमने एक बार लुक से सीखी कि अगर हमें किसी का बैकड्रॉप चेंज करना हो या किसी के कॉस्ट्यूम चेंज करने हो, साथ में अगर कुछ कहना भी हो, जैसे कि इसमें से मुझे हेलो भी बोलना हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लुक्स पे जाके वो कमांड को चूज करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। और जैसे मुझे बैकड्रॉप भी इसमें चेंज करना है तो आई विल गो टू द बैकड्रॉप। ओके, एंड जस्ट आई सिंपली क्लिक ऑन इट, तो यू कैन सी इट कि अब क्या है, कॉस्ट्यूम भी चेंज होगा, साथ में क्या है, बैकड्रॉप भी चेंज हो रहा है। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है। अब मैं जाता हूँ साउंड ऑप्शन में। साउंड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपको कभी भी गेम में साउंड इंट्रोड्यूस करना है तो जस्ट सिंपली यू गो टू द साउंड ऑप्शन। आपको ऊपर 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, कोड, कॉस्ट्यूम और साउंड। ठीक है।
So you have to click on the sound option. Okay, so just आपने जैसे बैकड्रॉप और जैसे स्प्राइट को लिया है वैसे ही सिंपली आपको साउंड भी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सारे साउंड है आपके सामने, आप इसमें देख सकते हो। जब आप आज होम जाइए, घर जाइएगा, तो आप देखिएगा आपके पास काफी सारे क्या है साउंड अवेलेबल है। ठीक है, मीन्स कि आपको जो भी अपने गेम के अकॉर्डिंग कोई भी साउंड लेना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर मैंने बी इलेक्ट्रिक पियानो सिलेक्ट करा हुआ है और अगेन आई विल गो टू द कोड। ओके, एंड देखो आपको क्या हुआ, वो चीज सिलेक्ट होके आ गई। एक जो क्या होगा, तो पॉप ऑलरेडी सिलेक्ट था, उसके बाद जो मैंने सिलेक्ट करा हुआ है वो क्या है, बी इलेक्ट्रिक पियानो। मीन्स कि आप साउंड के ऑप्शन से जाके अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हो, प्लस .mp3 का साउंड भी अपने गेम में अपलोड कर सकते हो। जैसे ही आप अपलोड करोगे MP3 का, वो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा साउंड कैसे स्टार्ट करना है, आई मीन साउंड कैसे अपने गेम में लेना है। ठीक है, अब मैं इवेंट्स पे जाता हूँ। मीन्स अभी आप देख रहे थे कि जितने भी कैरेक्टर्स थे, तो मुझे क्या करना पड़ रहा था, मुझे हर कैरेक्टर्स पे जाके इसमें ऑप्शन एक बार क्या करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। बट अगर आप इवेंट्स में जाओगे और फ्लैग आपने सिलेक्ट कर लिया और आप सभी कैरेक्टर्स में फ्लैग का ऑप्शन दे रहे हो, मीन्स कि अब आपके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो आपको पर्टिकुलर क्लिक करके नहीं स्टार्ट करने हैं, आपको फ्लैग के थ्रू स्टार्ट करने हैं। तो आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होगे फ्लैग का, फ्लैग मीन्स स्टार्ट होता है और रेड बटन मीन्स स्टॉप होता है। तो जैसे ही मैं स्टार्ट कर दूंगा, देखो दोनों चीजें क्या हुई मेरे एक साथ हुई। अब ठीक है, ये भी हो रहा है, देखो आप ये भी हो रहा है साथ में। मीन्स कि अगर आपको कोई भी गेम किसी भी उसमें स्टार्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो, फ्लैग के थ्रू अपना स्टार्ट कर सकते हो। नहीं कि मुझे फ्लैग से नहीं स्टार्ट करना है, मुझे किसी बटन से स्टार्ट करना है, तो मैं यहाँ से बटन भी कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूँ जो भी आपको नीड लगे। ठीक है, बटन्स के अलावा आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो, इस स्प्राइट को, यानी कि आप उस स्प्राइट को सिलेक्ट करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मीन्स अभी तक क्या था, फ्लैग था या कोई बटन प्रेस थी, बट अब क्या है कि जब तक मैं उस स्प्राइट में क्लिक नहीं करूंगा तब तक वो चीज आगे नहीं होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इवेंट्स तक ये 4 कमांड आपको पूरे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आई विल गो टू द कंट्रोल। कंट्रोल मीन्स होती है कंडीशंस, आप गेम में क्या क्या कंडीशंस रखना चाहते हो। ठीक है, तो पहली कंडीशंस क्या है, वेट, यानी कि अगर मुझे 1 सेकंड का वेट देना है कि 1 सेकंड बाद ये ये रुक के, जैसे मैं स्प्राइट को क्लिक करूंगा तो 1 सेकंड ये रुकेगा, देन ये 10 स्टेप्स मूव करेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 सेकंड करता हूँ तो ये 3 सेकंड को क्या करेगा, वेट करेगा, देन ये मूव 10 स्टेप्स करेगा। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये 3 सेकंड बाद अपने 10 स्टेप्स इंक्रीज करेगा। ठीक है, देखो इसने क्या करा, 3 सेकंड्स का वेट लिया, देन इट विल मूव इट। ठीक है, अब रिपीट कमांड क्या होता है, अगर आपको किसी भी कमांड को सर्टन टाइम रिपीट कराना है, मीन्स क्या करना है, सर्टन टाइम्स आपको रिपीट कराना है, तो हम रिपीट के थ्रू उसको कर सकते हैं। रिपीट 10 के अगर 5 लिया तो ये 5 टाइम्स देखो अपने आप क्या 3 सेकंड वेट करेगा, देन मूव 3 सेकंड का वेट करेगा, कितनी बार, 5 बार। तो हमने एक चीज जानी कि कंट्रोल वो होती है जहां से हमें अपनी कंडीशंस को देना है। ओके, आई थिंक सभी को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं रिपीट, देखो 5 टाइम्स रिपीट के बाद क्या होगा, ये स्टॉप हो जाएगा। देखो रिपीट के बाद क्या है, 5 टाइम्स के बाद ये स्टॉप हो गया। ओके, देन आई विल गो टू द फॉरएवर। ठीक है, मैं इसको हटा के फॉरएवर में, तो फॉरएवर इज वेरी यूजफुल कंट्रोलिंग कमांड यानी इंस्ट्रक्शन कमांड। फॉरएवर मीन्स ये होता है कि जब तक मेरी फॉरएवर के अंदर कंडीशन ट्रू होती रहेंगी तब तक मेरा गेम क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, रन होता रहेगा। मीन्स कि अगर जब तक मेरी गेम में कोई भी कंडीशन जो है वो फॉलो कर रही है फॉरएवर कमांड के अंदर, तब तक मेरा क्या है, गेम क्या है, मेरा रन होता रहेगा। अब देखो, अब आप क्या है, मैं यहाँ पे वेट 1 सेकंड करता हूँ और ये कंटिन्यूअस अब रन करता रहेगा। अब ये क्या है, कंटिन्यूअस रन करता रहेगा, अब ये स्टॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉरएवर कंडीशन यूज कर दी, और मेरी कंडीशन ऐसी कोई स्टॉपेबल भी नहीं है कि ये स्टॉप हो जाए। अगर आपको स्टॉप करना है तो जस्ट सिंपली क्लिक ऑन दिस और ये स्टॉप हो जाएगा आप। ठीक है, तो कंट्रोल से हमने ये समझा कि हमें अपने गेम में कैसे कंडीशंस देनी है, कैसे हमें अपने गेम्स को स्टॉप करना है, तो ये हमें कंट्रोल के थ्रू ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। सेंसिंग मींस यस, और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी कि आज जो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सो इट इज ओनली इंट्रोडक्शन। मतलब आज एक ही दिन में सारा हम स्क्रैच तो नहीं पढ़ सकते, इसलिए दीपक सर सिर्फ हमें ओवरव्यू दे रहे हैं कि एग्जैक्टली कौन से ब्लॉक होते हैं एंड स्क्रैच में हम किस तरह से गेम बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ये फास्ट होगा, बट एंड में दीपक सर आपको ये भी बताने वाले हैं
कि इतना सारा सब कुछ दीपक सर ने कितनी इजीली सीखा और आप भी कहाँ से ये सब चीजें सीख सकते हो। ठीक है, सो सिर्फ अभी इस सेशन में ये देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है एंड कितने अच्छे गेम्स हम बना पा सकते हैं। ठीक है, सो यस दीपक सर, अभी कंट्रोल तक हम ये ब्लॉक्स आज देखेंगे, देन इसके बाद ठीक है। भी और भी कुछ वेरिएबल्स भी हैं, मतलब स्कोर कैसे ऐड किया जा सकता है वगैरह, वो भी आप सीख सकते हो। सो दीपक सर आपको बताएंगे कि वो सब कहाँ से सीखना है। सो यस दीपक सर आप कंटिन्यू कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एक दिन में आप स्क्रैच को मतलब नहीं सीख सकते हो, तो इस मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ कि जब आप कुछ मैं हम लोग आपको कुछ डिलीवर्स देंगे कि कहाँ से आपको स्टडी करना है। तो जब आप स्टडी करने जाओगे तो आपको ये सब चीजें क्या है कंफ्यूजन नहीं करेंगी, तो आप इजीली समझ जाओगे कि ये चीजें कहाँ कहाँ यूज होती हैं। सेंसिंग मीन्स होता है कि जब हम गेम में कोई भी कंडीशंस को यूज कर रहे हैं तो वो किसके थ्रू वो कंडीशंस हमारी रन हो रही है। मीन्स कि मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन ली कंट्रोल से क्या इफ सेंसिंग में टचिंग माउस पॉइंटर, ठीक है। ये मैं कंडीशंस बता रहा हूँ कैसे क्या यूज होती है, ठीक है। तो मेरा क्या है मूव 10 स्टेप्स हो जाए, ठीक। यानी कि मेरे गेम ने क्या सेंस करा कि उसने माउस पॉइंटर को टच करा, उसके बाद उसने क्या करा इफ कंडीशंस देन स्टेटमेंट, और उसने स्टेटमेंट को फॉलो करा। यानी कि सेंसिंग वो हमारा जो इसमें ब्लॉक है जिससे कि हम जो भी कंडीशंस है उसको हम कैसे अपने गेम में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं टचिंग माउस पॉइंटर या टचिंग कलर के थ्रू, और वो कंडीशन हमारी क्या है उसमें फॉलो हो रही है, ठीक है। ऑपरेटर्स देखो, स्क्रैच जो है मैंने बताया आपको कि जो स्क्रैच सॉफ्टवेयर है वो क्या है एक एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है। मीन्स कि इसमें आप सारे एजुकेशनल गेम्स बना सकते हो। लाइक अगर आपको मैथमेटिक्स की क्विज बनानी है, या आपको अलजेब्रा सॉल्व करनी है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई सॉल्व करना है, या आपको अपनी पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना है, मींस ऑल राउंडर आप क्या कर सकते हो इस ऐप के थ्रू अपना कुछ भी गेम्स बना के उसको एक इंटरेक्टिव वे में आप उसको मतलब पेश कर सकते हो मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे काफी सारे ये चीजें हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड देन इक्वलिटी, लाइक लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ये सब इजी है, बट ये जो तीन ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं एंड और एंड नॉट लॉजिक, ठीक है, इसको बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट है और इनको हमें समझना भी जरूरी है। देखिए एंड क्या है, इट्स अ लॉजिक, मीन्स ये क्या है लॉजिक्स है, लॉजिक कमांड्स है, मीन्स कि इनमें कंडीशंस कुछ हम रखेंगे तभी ये फॉलो होगा, ठीक है। तो मैंने एक साथ इसलिए उठाया क्योंकि ये एक साथ आपको ज्यादा समझ में आएगा, अगर मैं एक एक समझाऊंगा तो आप क्या भूल जाओगे। देखो मैंने क्या बोला कि मेरा कोई गेम क्या है कि उसका माउस पॉइंटर भी टच करे और साथ में मैं चाह रहा हूँ कि मेरी क्या है की भी प्रेस हो, ठीक है। तो अब आप देखो क्या हुआ कि मैंने क्या बोला कि मेरा माउस पॉइंटर भी टच हो और साथ में क्या हो मेरी माउस की क्लिक भी हो, यानी एंड कमांड हम वहां पे यूज करेंगे और लॉजिक हम ये वहां यूज करेंगे जहां पे मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ठीक है। अब ध्यान सुनना, जब भी आप घर पे जाते हो, ठीक है, अपने स्विच को जब आपके अंदर घर पे कोई भी इलेक्ट्रिकल स्विच होगा तो पहले आप जब क्या करते हो उसको टच करते हो, उसके बाद क्या करते हो उसको प्रेस करते हो। मीन्स दोनों कंडीशन आप एक साथ फॉलो कर रहे हो तभी आपके क्या हुआ स्विच ऑन हो रहा है। अगर दोनों में से आपने एक कंडीशन फॉलो करी तो वो चीज एंड लॉजिक में नहीं होगा। मीन्स एंड लॉजिक हम वहां यूज करेंगे जहां पे हमें दोनों कंडीशन को ट्रू करना है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन मैंने क्या कहा कि टचिंग माउस पॉइंटर हो या टचिंग कलर हो, ठीक है। यानी कि अगर आपने कोई गेम बनाया, ठीक है, उसमें एक स्विच बनाया हुआ है, या वो तो कलर या तो उसका कलर व्हाइट आप टच कर लो या उसको आप क्या कर लो माउस पॉइंटर से टच कर दो, यानी दोनों में से अगर कोई भी एक हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है तो हमारा गेम क्या है रन हो जाएगा। एंड लॉजिक में हमारी दोनों कंडीशन क्या है ट्रू होगी तभी हमारा क्या होगा गेम में जो कंडीशन है वो फॉलो होगी। और लॉजिक में क्या होगा दोनों में से कोई भी एक कंडीशन हमारी क्या होगी अगर ट्रू होगी तो वो चीज हमारी स्टार्ट हो जाएगी, मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर है। नॉट मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि यानी कि ये कंडीशंस हमारी नहीं अप्लाई हो रही, यानी ये कलर हमने अप्लाई नहीं करना है तो हम उसको नॉट को यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कमांड होते हैं और ये हमारे काफी सारे यूजफुल में भी है किसमें स्क्रैच में, ठीक है। अब मैं आता हूँ वेरिएबल्स में, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जैसे हमें कोई इंफॉर्मेशन देनी है इसमें क्या है वैल्यूज में, ठीक है।
तो हम वेरिएबल्स यूज करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि स्कोर हो गया, लाइट्स हो गई, टाइमर हो गया, तो ये हमें गेम में जल्दी मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, मेक का वेरिएबल में गया और मैंने यहाँ पे वेरिएबल कैसे बनाया, मेक का वेरिएबल क्लिक करा और स्कोर को मैंने यहाँ पे बना लिया। अब स्कोर में आप क्या करोगे, कोई वैल्यू इसमें क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। मीन्स की वेरिएबल वो होते हैं जहाँ पे हमें अपने गेम में कोई वेरिएबल इंट्रोड्यूस करके कोई वैल्यू देनी है, ठीक है। अब सेट कैसे करते हैं, यानी गेम में आप क्या करो कि उसको जाके इनिशियल में सेट करो। ये सब चीजें देखो एक दिन में नहीं, जब मैं आपको बताऊंगा कैसे ये सब चीजें क्या है कि इंट्रोड्यूस होंगी, कुछ आखिरी में प्लेटफॉर्म्स हम आपको बताएंगे जहां से आप क्या है आज जाके अपने घर पे गेम डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्या करना, मेक का वेरिएबल में जाना है और सिंपली क्लिक कर देना है यहाँ पे, और जैसे मुझे लाइट्स बनाना है तो हम यहाँ पे लाइट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इनको सेट कैसे करना है, ये ऑप्शन है सेट लाइट्स टू जैसे 5 ऑप्शन, ठीक है। तो 5 ऑप्शन करा और मैंने यहाँ से क्या करा, फ्लैग ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करा, तो मेरी लाइट्स क्या है, जैसे ही मैं फ्लैग क्लिक करूंगा तो मेरी लाइट्स क्या है 5 आ गई, ठीक है। अगर मुझे चेंज करना है तो मैं वापस वेरिएबल में जाऊंगा और चेंज कर दूंगा एज पर द कंडीशन। तो आई थिंक सभी को यहाँ तक कुछ थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, ओके। तो मैं एक एनिमेशन स्टोरी बताने जा रहा हूँ आपको, एक मैजिक की एनिमेशन स्टोरी है, ठीक है। यानी कि इसमें 2 कैरेक्टर होंगे और जो इसमें कमांड मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी बताया नहीं है, इसने बताया कि आपको उससे ज्यादा समझ में आएगा, अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो कम समझ में आएगा। तो मैं सारे कैरेक्टर्स को यहाँ से क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं कुछ नए कैरेक्टर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, आप देखिएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से बैकड्रॉप को भी कैसे हटाते हैं, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द बैकड्रॉप, गो टू द बैकड्रॉप ऑप्शन, और जो आपको नीड नहीं है आप उसमें क्या कर लो, उसको हटा दो, ठीक है। तो जो मुझे नीड नहीं है तो मैंने ये चीज जो हमारे बैकड्रॉप्स है वो हमने हटा दिए, और मुझे इसमें स्कोर और लाइट्स भी नीड नहीं है तो मैंने वो भी हटा दिए। अब सेकंड इंपॉर्टेंट टास्क है कैरेक्टर्स, तो मैं यहाँ पे मैजिक के कैरेक्टर्स लेता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पे, ओके। सो आपको क्या करना है, कोई भी कैरेक्टर चूज करना है, मुझे मैजिक के कैरेक्टर लेने हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैजिक के कैरेक्टर लिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इनका साइज क्या है, यहाँ से भी क्या कर सकता हूँ, इसको स्मॉल कर सकता हूँ, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, लुक्स में जाइएगा और सेट साइज टू, आपको जो साइज में करना है आप उससे भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में एक और कैरेक्टर लेता हूँ, ठीक है, एक टीचर है, एक स्टूडेंट्स है, ठीक है। एक मैं शॉर्ट एनिमेशन स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, मैजिक, ठीक है। ये मैंने एक इसकी स्टूडेंट को ले लिया है, आपके सामने देखो 2 कैरेक्टर्स हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक हमारे टीचर है और एक हमारे क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि स्टूडेंट का फेस क्या है, रिवर्स है एज कंपेयर टू अवर टीचर, ठीक है। तो मैंने अभी आपको सिखाया क्या क्या करना है, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द कॉस्ट्यूम, गो टू द कॉस्ट्यूम ऑप्शन, कोड के बगल में कॉस्ट्यूम ऑप्शन है, और आप क्या कर दो, फ्लिप कर दो, तो क्या हो जाएगा, आपके जो भी कैरेक्टर्स है उसका फेस क्या है, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगेन आई विल गो टू द ऑप्शन व्हाट विजार्ड, जो हमारे टीचर हैं, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने गेम किससे स्टार्ट कर रहा हूँ, फ्लैग के थ्रू, ओके। सो जस्ट मैंने क्या करा, फ्लैग यहाँ पे लगाया हुआ है, और अब मैं इस टीचर से कुछ बोलूंगा, तो टीचर मुझसे क्या बोलेंगे कि अब देखो टीचर से कुछ बोल, टीचर अगर कुछ बोलना चाहेगा तो किसी से, ठीक है। तो मैंने बोला टीचर क्या बोलेंगे, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैजिक वर्ल्ड, सो टीचर ने मुझे क्या बोला, 2 सेकंड तक मुझे क्या बोला उन्होंने, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैजिक वर्ल्ड। स्टूडेंट बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि 2 सेकंड तक क्या होगा, टीचर ने हमें क्या बोला, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैजिक वर्ल्ड। तो जैसे ही मैं यहाँ पे फ्लैग क्लिक करूंगा, टीचर ने मुझसे क्या बोला, हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैजिक वर्ल्ड। आई थिंक सबको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मुझे टीचर बोले तब तक मैं कह रहा हूँ बिल्कुल शांत रहूं, यानी मैं कुछ न बोलूं। तो मैं क्या यूज करूंगा, वेट कमांड। बट उससे पहले मैं आपको 2 कमांड मैंने अभी आपको रोके हुए थे या बताए नहीं थे, शो और हाइड, मतलब वेरी यूजफुल कमांड। अगर आप कभी भी जो अपने एडवांस गेम बनाएंगे उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें कैसे इस्तेमाल करना, मीन्स ये चीज हमारी बहुत वेरी यूज होती है, जैसे गेम ओवर करना है या स्टार्ट बटन बनानी है, तो हम उसको शो और हाइड कैसे करते हैं, उसी का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ इस वाले गेम में, ठीक है। तो शो मीन्स आपको समझ में आ रहा होगा कि मीन्स कोई चीज वो देखना मुझे शो होता है, और किसी चीज को मुझे छुपाना उसे हाइड कहते हैं, ठीक है। अब हम गेम में कैसे यूज करेंगे, अब आप ये देखो मैं स्टार्ट करता हूँ किससे, फ्लैग के थ्रू, ठीक है। तो मुझे शुरुआत में जो कैरेक्टर्स है, ठीक है,
इसको मुझे शो कराना है। अगर मैं शुरुआत से ही इसको हाइड कर दूंगा तो टीचर से ये बात नहीं कर पाएगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको शो कर दूंगा। अब ठीक है, मैंने इसको शो कर दिया। अब मुझे 2 सेकंड तक बिल्कुल चुप रहना है। क्यों? क्योंकि टीचर्स मुझे 2 सेकंड तक क्या है, मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, मीन्स वो कुछ बोल रहे हैं, तो मैं जाऊंगा कंट्रोल में और यहाँ से क्या ले लूंगा, वेट 2 सेकंड। ठीक है, वेट 2 सेकंड ले लिया। अब 2 सेकंड के बाद मैं कुछ भी बोल सकता हूँ टीचर से, तो मैं गया लुक्स में और मैंने यहाँ पे क्या उठाया, फिर से सेम। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपने टीचर्स बोलेगा क्या, आई विल शो सम मैजिक। ठीक है, आई विल शो सम मैजिक फॉर 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप देखना कि क्या हुआ, हेलो स्टूडेंट्स, और 2 सेकंड के बाद ही ये रिप्लाई कर रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि 2 सेकंड तक हमारे टीचर रिप्लाई कर रहे हैं और 2 सेकंड के बाद क्या हुआ, मेरा जो कैरेक्टर्स है, जो हमारे जो ये स्टूडेंट है, गर्ल है, इसने रिप्लाई करा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको यहाँ से 2 सेकंड बाद हाइड कर दूं, मीन्स ये मुझे कुछ मैजिक दिखाए। तो मैंने यहाँ से क्या ले लिया, हाइड कैरेक्टर्स को प्रेस भी कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, जैसे ही क्लिक करोगे तो इनिशियल में क्या है, चीज शो होगी और उसके बाद 2 सेकंड बाद क्या होगा, ये हाइड हो जाएगा। तो मैं इसको मैक्सिमाइज करके एक बार फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैजिक वर्ल्ड, एंड देन आई विल शो सम मैजिक, और ये हाइड हो गया। ठीक है, तो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कैसे मुझे शो और हाइड यूज करना है। ठीक है, अब आप कभी भी जब मैजिक का गेम देखते हो तो आपने देखा होगा कि उसके पीछे क्या एक हॉरर की थीम भी चलती है, मीन्स जो उसका बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा क्या होता है, ब्लर होता है। तो ब्लरिंग इफेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैकड्रॉप को कंटिन्यूअस चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ से जाएंगे पेन फ्लैग क्लिक। अब 2 सेकंड में तक मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी एक्टिविटीज नहीं करूँ, तो मैं यहाँ पे 2 सेकंड तक क्या कर दूंगा, अपने आप को रोक लूंगा। 2 सेकंड तक मैंने क्या करा, वेट, इंतजार करा। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे कंटिन्यूअस क्या करना है, ब्लरिंग इफेक्ट देने, पीछे की इमेज बैकड्रॉप को लगातार चेंज करना है। तो अब मैं कंडीशन को चूज करूंगा फॉरएवर की। ठीक है, हमारे पास कितने बैकड्रॉप है, यहाँ से आप देख सकते हो 1 2 3, हमारे पास 3 बैकड्रॉप्स है यहाँ पे, आप देख सकते हो। ठीक है, तो हमें इसको कंटिन्यूअस चेंज कराना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ से करेंगे इसको, फॉरएवर में जाएंगे और नेक्स्ट बैकड्रॉप में सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब आप देखना कि जैसे ही मैं फ्लैग क्लिक करूंगा दोनों आएंगे और उसके बाद क्या होगा, पीछे का हमारा इफेक्ट क्या हुआ, चेंज हो गया। देखो अब पीछे का इफेक्ट क्या हुआ, चेंज हो रहा है। मैं फिर से स्टॉप कर रहा हूँ और फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बस इतना सिखाने के लिए मेरा आज प्रोग्राम था, जो हमारा जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, कि कैसे हम ये सब जो मैं जो कर रहा हूँ वो आप उससे बेटर कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ उस मॉड्यूल्स में, उस पोर्टल में, जहां से आप ये सब चीजें क्या है, ऑनलाइन सीख सकते हो। जो हमारा प्रोग्राम है ये 3 डेज का है, और 3 डेज के बाद क्या है, आपको अपनी सेल्फ लर्निंग करनी है, मीन्स आपको ये सब चीजें क्या है, खुद से सीखनी है। हमारा कुछ कंपटीशन भी आगे रहेगा जिसमें हम आपको इनवाइट करेंगे कुछ एक 1 मंथ के बाद। तो आपको अपने गेम्स क्या है, बेस्ट बनाने हैं। अब गेम्स बेस्ट कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको कुछ पोर्टल्स में ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा, मुझे मैं बताता हूँ आपको कि आपको कहाँ से लर्निंग स्टार्ट करनी है अपनी। ठीक है, तो जस्ट सी ऑन माई पीपीटीज। ओके, सो मैं जाता हूँ, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे पास कोर्सेस अवेलेबल हैं वो कौन कौन से हैं, बिगनर लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। आज मैंने आपको जो बिगनर लेवल बताया है, ठीक है, स्क्रैच में। ठीक है, अब जो हमारा पोर्टल है, मीन्स जो हमारा गेमिंग पोर्टल है, जो मेन हमारा, जिससे हमें सेल्फ स्टार्ट करनी है लर्निंग, वो किसके थ्रू इनिशिएटिव है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड होल दिस प्रोग्राम इज सपोर्टेड बाय Dell Technologies and implemented by Learning Foundation. So you have to write one website on your copy. This website name is www.planetcode.in. आपको इस वेबसाइट का क्या करना है, नाम नोट करना है अपनी कॉपी में। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ इस वेबसाइट में। आप सभी लोग क्या करें, इस वेबसाइट को अपनी कॉपी में नोट कर ले, अदरवाइज आई विल शेयर ऑल द लिंक विद यू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल प्लैनेट कोड में जाना है। ओके, जस्ट टाइप planetcode.in, planetcode.in. It's a website developed by the Niti Aayog, Government of India, supported by Dell Technologies, and whole this program is implemented by Learning Foundation. Okay, so it's a very interesting website. आप देख सकते हो उसके जो ग्राफिक्स इफेक्ट्स हैं वो काफी मतलब अच्छे हैं, और जो इसमें से मतलब आप क्या है, कोर्स बहुत ही इजीली क्या है अपने आप सीख सकते हो। आप इसमें कुछ
मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ और उस स्टेप्स को आप अप्लाई करके अपने क्या है जो भी कोर्स जो गेम डेवलपमेंट की जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हो। ओके, सो आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड में क्लिक करना है। एज सुन एज आप गेट स्टार्टेड में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, रजिस्टर नाउ लिख के और क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो सभी बच्चों को अपना अपना अकाउंट बनाना है खुद का, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्कूल में एक ही ने बना लिया अकाउंट बाकी सब बच्चे उससे पढ़े, नो ऐसा नहीं है। इसमें सभी बच्चों को अपना अपना अकाउंट खुद बनाना है और इसमें जो डिटेल्स है, जैसे आप सोशल नेटवर्किंग साइट में डिटेल्स लेते हो वैसे ही डिटेल्स है। लाइक फर्स्ट नेम, लाइक जैसे मेरा नाम क्या है, दीपक पोरवाल। ओके, तो मैं दीपक पोरवाल लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देन मैं यूजर आईडी यहाँ पे अपना यूजर नेम, देखो यूजर नेम क्या है, आपको अपना यूजर नेम बनाना है वो भी यूनिक। ऐसा नहीं कि आप अपने फ्रेंड का यूजर नेम लिख लो या कोई भी, आपको हमेशा यूनिक यूजर नेम बनाना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी ऑप्शनल है, आप इसमें लिख सकते हो। तो जो मेरी ईमेल आईडी क्या है, दीपक पोरवाल, ठीक है, @25 सॉरी दीपक पोरवाल 25 @gmail.com, ठीक है। तो सभी बच्चों को अपनी अपनी ईमेल आईडी लिखनी है। देन पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड मींस आपको जो पासवर्ड यहाँ बनाना है वही सेम पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड यहाँ भी रखना है। डेट ऑफ बर्थ सभी बच्चों को अपनी अपनी लिखनी है, फॉर बॉयज मेल गर्ल्स फीमेल। अब स्कूल नेम में क्या है, आपको कंबाइन में लिखना है, लाइक दिस केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग, मीन्स कि आपको अपने स्कूल में कोई भी स्पेस नहीं देना है, ठीक है। और आपके सभी के स्कूल क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है। और जिस भी आपका कंट्री क्या है, इंडिया है, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो इंडिया के ऑप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपके स्कूल का जो भी स्टेट है, लाइक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जो भी है, दिल्ली, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी जिसका। फोन नंबर ऑप्शनल है। ग्रेड मींस क्या है, आप किस क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 11, 12। और आपको हमेशा इसमें दो चीजें ही रिमेम्बर रखनी है जब साइन अप करोगे, क्या क्या, यूजर नेम और क्या, पासवर्ड। क्यों, क्योंकि जब आप लॉगिन करोगे, जब भी आप कोई लॉगिन करते हो किसी साइट में, तो आपको एक यूजर नेम देता है और पासवर्ड देता है। वैसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है, यूजर नेम और पासवर्ड आपको रिमेम्बर रखना है। तो वही यूजर नेम क्या करना है, लॉगिन में यूज करना है जो आपने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो आई विल गो टू द लॉगिन विंडो। ओके, आप देख सकते हो यूजर नेम मैंने दीपक 88 बनाया था, तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए मैंने इसमें ऑलरेडी पासवर्ड और सेव करके रखा हुआ है। तो आपको सिंपली क्या करना है, लॉगिन करना है जाके इसमें पोर्टल में। ओके, जैसे ही आपने पोर्टल करा तो वैसे ही आपके सामने क्या है, 3 बैचेस मींस ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड बैचेस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। अब ये बैचेस किस किस चीज के हैं मैं आपको बताता हूँ पूरा। देखिए, मैंने आपको बताया 3 कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन से, बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, ठीक है। तो जैसे ही आपने स्क्रैच कोर्स को पूरा कंप्लीट करा, किससे, इस पूरी वेबसाइट से, प्लेनेट कोर्स से, तो आपको ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे अपियर होके आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने इंटरमीडिएट मॉड्यूल पूरा कंप्लीट करा यहाँ पे विद वीडियोस एंड क्विजेस, तो आपको सिल्वर मेडल मिल जाएगा। जैसे ही आपने यूनिटी का एडवांस जो हमारा मॉड्यूल है उसको कंप्लीट करा, तो आपको गोल्ड मेडल मिल जाएगा। अब कैसे स्टार्ट करना है, तो आई वाज जस्ट सिंपली गिविंग अ ब्रीफ, जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द फर्स्ट बिगिनर लेवल। ओके, सो आप यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको सिखाया हुआ है स्क्रैच के बारे में, तो आप उसकी थोड़ा सा डिटेल्स भी पढ़ सकते हो कि व्हाट इज स्क्रैच। स्क्रैच इज द बेस्ट एजुकेशनल प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर फॉर किड्स एंड टीन्स। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, एक बार पढ़ लेना पूरा, कि जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि स्क्रैच बेसिकली है क्या। ओके, आफ्टर दिस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द फर्स्ट वीडियो। देखो, ऐसा नहीं कि आप इसमें लास्ट वीडियो क्लिक करो, आपको सिंपली इसमें स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में क्लिक कर देना है, ठीक है। एज सुन एज यू क्लिक ऑन द फर्स्ट वीडियो, द होल कोर्स विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। होल कोर्स आपके पास अपीयर होके आ जाएगा। और इस कोर्स में आपको सिंपली करना क्या है कि 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। मींस ऐसा नहीं होगा कि आप ये सोचो कि नहीं मैं प्रिवेंट ओन डिप्लीशन पहले देखना चाहूंगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने कोर्स को क्या करना है, सिंपली स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट करते हुए जाना है विद क्विजेस, ठीक है। जैसे कि मैं फर्स्ट वीडियो में एक जस्ट सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी ये आप अपने होम पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट सेकंड वीडियो में क्लिक करा, ऑलरेडी आई हैव सीन ऑल द वीडियोस, सो मैंने फर्स्ट वीडियो में क्लिक करा, ठीक है। तो जस्ट गिव मी मिनट, I have to change of my mic setting.
So students, आपको No, it सिंपली was क्या करना है? okay, Deepak ji. ओके You can ओके continue. ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या है गेम डेवलपमेंट क्या है यहाँ से अपनी जो भी वीडियोस है उनको पूरा क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि जैसे आप अगर यूट्यूब में जाओगे या कहीं किसी भी विंडो में जाओगे तो वो आपको क्या है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल कर देंगे। मीन्स एक साइट पे जाओगे तो वो दूसरी साइट पे ले जाएंगे और दूसरी से तीसरी ले जाएंगे, आपका टाइम काफी क्या है कंज्यूमेबल हो जाएगा। तो सबसे मैं बेस्ट कहूंगा अगर आपको गेम डेवलपर बनना है गेम प्लेयर से, तो आप इस वेबसाइट को रेफर करो। स्टेप बाय स्टेप जो मैडम इसमें आपको अनीता मैम जो है वो आपको क्या है बताएंगी कि कैसे आपको सारे स्टेप्स करने हैं। देखो स्क्रैच जैसे मैंने डाउनलोड करके बताया ना, तो वैसे ही आपको स्क्रैच के बारे में मैडम पूरा डिटेल्स में देगी कि किस वेबसाइट पे जाना है। साथ में आप नीचे देख रहे हो कि नीचे भी आपको पूरा कुछ लिखा हुआ है कि फॉर यूजिंग स्क्रैच ऑनलाइन ओपन अ न्यू टैब ऑन योर ब्राउज़र एंड विजिट स्क्रैच। जैसे कि मैंने बताया आपको कि scratch.mit.edu है, वैसे ही आप जब हर वीडियो में जाओगे तो आपको कुछ डिटेल्स मिलेगी। साथ में आपको यहाँ पे 4 गेम्स फुल पूरे बने हुए मिलेंगे, यानी कि आप अपने गेम की जर्नी स्क्रैच की यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमें कैसे स्टार्ट करना है। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम कल के सेशंस में फिर मिलेंगे एट अ सेम टाइम 4 o'clock। और कल हम एडवांस जो हमारा इंटरमीडिएट मॉड्यूल है कंस्ट्रक्ट, उस पे हम अपना स्विच करेंगे। ओके, सो आई थिंक कि सभी को समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। ओके, एट द लास्ट I just want to say Supriya ma'am to say something about. Yes. So students, as Deepak sir said, हम कल भी मिलेंगे 4 बजे, 4 से 5:30। सो कल आपके कुछ स्क्रैच के डाउट होंगे तो वो भी हम डिस्कस करेंगे एंड कल की सेशन की लिंक कल शेयर करेंगे, ठीक है। बट इट इज़ रियली वेरी इजी। आज सिर्फ हमने आपको ओवरव्यू दिया है कि एग्जैक्टली स्क्रैच में क्या पॉसिबल है, किस तरह से कितने गेम्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे गेम स्टूडेंट्स ने बनाए हैं जो कि इनिशियली भी जनकपुरी के स्टूडेंट ने भी दिखाए थे आपको कि उन्होंने कैसे एक्सप्लोर किया। ओके, तो बहुत ही ऐप देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड कुछ चीज़ें आप बना सकते हो स्क्रैच में भी, ठीक है। उसके लिए दीपक सर ने आपको एक लिंक भी शेयर किया है, मैसेज में आप चैट बॉक्स में देख सकते हो, वहाँ पे भी आप रजिस्टर करके खुद अपने आप भी सीख सकते हो, ठीक है। सो ठीक है, कल मिलेंगे फिर 4 बजे। Link will be shared you tomorrow. Okay, sir. Thank you, Deepak sir. Thank you, Janakpuri team. Thank you to all Thank of you, you Jitendra for sir. attending this session. And tomorrow, don't leave the session. Please be at time. We will start our session at 4 o'clock. Yes. Okay. So bye bye all of you. Take care. Tinker from home. Thank you for being such a wonderful audience.